Hare Krishna. We'll begin the session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Radha Vrindavan Chandra की जय, श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय. Hare Krishna. Yesterday we stopped at shloka number 61 and we learnt about how Ambarish Maharaj utilized his entire body in the service of the Lord and how he did it. तो कल हमने श्लोका नंबर 61 में पढ़ा कि कैसे अम्बरीश महाराज ने अपने पूरे शरीर को भगवान कृष्ण की सेवा में कैसे उसने लगाया, ये हमने सीखा. So we will move on. So what we learned yesterday in shloka number 61 was the real aim of yoga. योगा का असली उद्देश्य क्या है? And yesterday I had a little bit terrible time with my throat. Hope today I'll be able to do better and complete the session. So what we learned in shloka number 61 was the best way to deal with temptation. What is the best way to deal with temptation? Is not to deal with it at all. उसके पास ही नहीं जाना है. इंद्रिय विषयों को जो भी उकसाने की बात आती है तो उसको हम कैसे संभालें, उसके करीब ही हमको नहीं जाना है. And we also learned that how determination is helpful in overcoming temptations, but a better way of overcoming temptations is by devotion. भक्ति से परे और कोई प्रयोग नहीं है विषय इंद्रियों के विषयों को जीतने में. हालांकि धृति से डिटर्मिनेशन से हम जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा. डिटर्मिनेशन हैज इट्स प्लेस, बट डिवोशन इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट. सो व्हाई? बिकॉज नॉलेज कर्व्स द सेंसेस. विथ ज्ञान के साथ हम अपने इंद्रियों को दमन कर सकते हैं, इंद्रिय दमन कर सकते हैं, मन का शमन कर सकते हैं. बट डिवोशन कॉन्कर्स द सेंसेस एंड माइंड. लेकिन भक्ति के मार्ग से जब हम जाएंगे, भक्ति के द्वारा जब हम इंद्रिय और मन को मतलब जीतने की कोशिश करेंगे, तो हम उसके ऊपर कॉन्क्वेस्ट पा सकते हैं. वी कैन कॉन्कर इट. उसके ऊपर जीत पा सकते हैं. वरना ज्ञान से केवल हम उसको दमन कर सकते हैं और शमन कर सकते हैं. So the best way to say no to temptation is to say yes to devotion. तो इंद्रिय विषयों को ना बोलने का सबसे अच्छा तरीका है भक्ति भाव में भगवान की सेवा करना. क्योंकि जब रोशनी हमारे जीवन में आएगा, अंधकार अपने आप चला जाएगा. उसके लिए कोई अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं है. सो टिल नाउ हमने देखा कि कृष्णा did not refer to himself up to shloka number 60, chapter 6 to shloka number 60. 60वें श्लोका तक कृष्ण ने डायरेक्टली अपने बारे में रेफरेंस नहीं दिया है, लेकिन 61 में हम देख सकते हैं कि कैसे उसने बताया कि युक्त आसीत मत परहा युक्त आसीत. He is answering the question that Arjuna asked,
Kim Asita. How does a Sthita Prajna sit? It means how is he situated? How is he controlling himself? So भगवान कृष्ण अभी डायरेक्टली बोल रहे हैं युक्त आसीत मत परः, मतलब आपको मेरे तरफ मुंह करना है. यू मस्ट लुक टुवर्ड्स मी, यू मस्ट devote your senses and mind, intelligence and everything that you have to me. Yukta asita mat paraha. So the first time he has referred to himself, he has brought himself to picture, and we learned that the 3 steps to control or to become Prajna Pratishtita in 61, we learned that to control the senses, first step, to concentrate the mind and our activities on Krishna, and thirdly, by doing that, we can conquer the senses and the mind. These are the 3 steps. So 3 steps थे कैसे हम अपने आप पे संयम पा सकते हैं हमारे इंद्रिय और मन पे. पहला कदम था इंद्रिय दमन, और दूसरा स्टेप था मन को और सारे हमारे कार्य को कृष्ण के ऊपर केंद्रीकृत करना, और तीसरा उसके साथ क्या होगा, हम अपने इंद्रियों पे और अपने मन पे, अपने बुद्धि पे हम काबू पा सकते हैं. So we will move on. We will do shloka number 62, a very interesting shloka. It is basically talking about what is the root cause of all the wrong things that are happening in our life. The theme for today was the root cause of anger. ये हमने theme बताया था. So we straight away start with what is the root cause of anger. In this very particular shloka we will come to know. तो गुस्से का मूल कारण क्या है? We must understand that anger is a gateway to hell. There are 3 gateways to hell. Anger is one of them. Lust and greed are the other 2. So पहले how anger is coming in our life, let us see. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते. So Krishna is telling here, while contemplating the objects of senses, ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब इंद्रिय विषयों पे हमारा ध्यान हम केंद्रीकृत करेंगे, a person develops lust for them. संगस्तेषु उपजायते, उसका संगत में रहने की उसको इच्छा होगी. And from such attachment lust develops. और संगत संजायते कामः, तो ऐसे उसके संपर्क में रहने से काम, desire जागृत होता है. So then what happens? And from lust anger arises. और ये काम क्रोध का पिता है, मतलब it gives rise to anger, unfulfilled desire. जब हमारा इंद्रिय तृप्ति नहीं होता है, हमारा काम का पूर्ति नहीं होता है, तो हमें क्रोध आता है. You see, any example you take in your life, why do you get angry? You get angry because something that you wanted to happen, something that you liked to happen, did not happen. आपको कुछ इच्छा था कि ये होना था, वो नहीं हुआ, तो इसलिए आप क्रोधित हो गए. So कामात् क्रोधो विजायते. So one who is not Krishna conscious is subjected to material desires. तो ध्यायतो विषयान् पुंसः, तो मूल कारण कहाँ से आ रहा है? जब इंद्रिय विषयों पे हम अपना ध्यान केंद्रीकृत करेंगे, उसके बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, तो उसके साथ रहने की आशा हमें आएगा. उसके साथ रहने से उसका काम हमारे, मतलब उस मनोकामनाएं हमारे अंदर जागृत होगा, और जब मनोकामनाएं पूर्ति नहीं होगा, क्रोधो भी जायते. So one who is not Krishna conscious is subjected to material desire. तो कौन इस स्थिति में पड़ेगा? जो कृष्ण भावनामृत में अपना जीवन नहीं बिता रहा है, वो इस स्थिति में बहुत ही जल्दी पहुंचेगा, बात बात पे वो पहुंच जाएगा. So this shloka is also teaching us the secret of success, of how we can be successful in human life. In the purport, Prabhupada speaks. The only method to get out of this puzzle of material existence, भौतिक जगत मतलब विषयों के बारे में हम अक्सर
आगे पीछे हमारे घूमते रहते हैं, मतलब वी इन एवरी स्टेप वी come across those things that try to take us away from Krishna. That is the sense objects. So the only method to get out of this puzzle of material existence is become Krishna conscious. एक ही उपाय है इससे हमें बाहर आने का, कृष्ण भावनामृत में हमें अपने आप को जागरूक करना है. And हरिदास ठाकुर was a young devotee of the Lord. हमने बात किया कल हरिदास ठाकुर के बारे में. जब वो एक युवा भक्त थे, he was similarly allured by the incarnation of माया देवी. तो हमने इसके बारे में पिछले सत्र में बात किया था, कल बात किया था. बट हरिदास इजीली पास द टेस्ट. लेकिन हरिदास जी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए बिकॉज ऑफ हिज अनअलॉयड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण. कैसे उत्तीर्ण हो गए, कैसे पास हो गए? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के ऊपर मतलब केंद्रीकृत था उनका जीवन, उनके भक्ति में उनका जीवन मतलब समर्पित था. The higher taste for spiritual enjoyment is the association of the Lord. So we've been talking about param drishtva nivartate, to develop higher taste. How do we develop this higher taste? Prabhupada says the higher taste for spiritual enjoyment in the association of the Lord, that is the secret of success. भगवान के संपर्क में जब हम रहेंगे तो अपने आप हमें परम दृष्टवा दिखने लगेगा. मतलब हमें इसके लिए भी अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है. तो अंधेरा भगाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है और शुद्धिकरण के लिए भी अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है. केवल कृष्ण भावनामृत में हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे. भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो आदेश दिया है, जो उपदेश दिया है, हमारे गुरु ने हमें जो आदेश दिया है, प्रभुपाद जी ने हमें जो डूज एंड डोंट्स दिया है, उसके ऊपर हम स्टिक ऑन करने से, बाय स्टिकिंग ऑन टू दीज थिंग्स, automatically will become purified. So this is the secret of success of human life. तो ये भक्ति मार्ग का एक गुणात्मक विषय है, and it's an open secret. Everybody can be thought about this. So next sloka also we will read because it continues. The next sloka is the continuation of 62. So what happens when somebody gets angry? So what are the further consequences of a person who becomes or who is in anger? Krodhat bhavati sammoha, sammohat smriti vibramaha, smriti vibramshat buddhinasho, buddhinashat pranashyati. So from anger, delusion arises. क्रोधात भवति सम्मोहा. क्रोध जब हद से बाहर चला जाएगा तो हम सम्मोहित हो जाते हैं, मोह के वश में हम आ जाते हैं. फ्रॉम डिल्यूशन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी अराइजेस. सम्मोहात स्मृति विभ्रमा. जब हम सम्मोहित हो जाएंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये संयम हम भूल जाते हैं, हम खो जाते हैं. वी फॉरगेट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर अस. So smriti vibramaha, there is loss of memory. उससे क्या होगा? When the memory is bewildered, intelligence is lost. smriti bhramshat buddhinasho. तो जब आगे पीछे सोचने का जो शक्ति है वो हम खो देते हैं मोह के कारण. जब हम सही और गलत का परिभाषा भूल जाते हैं तो क्या होता है? बुद्धिनाशा. We lose our intelligence. So what happens when we lose our intelligence? Buddhinashat pranashyati. And when intelligence is lost, one falls down again in the material pool. Buddhinashat pranashyati. Pranashyati मतलब आध्यात्मिक प्रगति करने के बजाय हम वापस भौतिक जगत में रहने के लिए जो जो हमें व्यवस्था चाहिए वो करना प्रारंभ कर लेंगे, या बाय डिफॉल्ट हमें वो व्यवस्था मिल जाएगा. So this shloka tells us what is the road map for a fall down. कोई पतित होने का क्या मार्ग है, मतलब कैसे फ्लो चार्ट क्या है, उसका फ्लो चार्ट क्या है हम आगे पढ़ेंगे. We will complete this purport and I will take you through that flow chart. So you see these two shlokas 62 and 63 are those shlokas that practically we can see
इन अ मेटेरियलिस्टिक पर्सन्स लाइफ, कैसे वो विषय के पीछे भाग के बुद्धिनाश तक पहुंच के प्रणश्यति, तो ऐसे कार्य करने लगता है जिससे उसका इस भौतिक जगत में बहुकाल चिरकाल रहना मतलब एक गारंटी है, वो आध्यात्मिक प्रगति कर ही नहीं पाएगा। So by development of Krishna consciousness, one can know that everything has its use in the service of the Lord. जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, अब उसको पता है वैराग्य फल्गु वैराग्य नहीं होना चाहिए, मतलब अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ये सब रहेगा तो ही तो मैं भटक जाऊंगा, तो मैं सबसे दूर चला जाऊंगा। दैट इज फल्गु वैराग्य, बिकॉज एवरीथिंग इज इन रिलेशन टू कृष्णा, हरि संबंधी वस्तु न, जो भी आप देख रहे हैं दुनिया में सब कृष्ण से जुड़ा है। सो एक बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में जो रह चुका है, वो व्यक्ति क्या करेगा, ही विल टेक टू अ प्रोसेस कॉल्ड युक्त वैराग्य, मतलब वो अपने लिए इस इंद्रियों को, इस इंद्रिय विषयों को, इस मन को, इस बुद्धि को उपयोग नहीं करेगा, वो भगवान की सेवा में उसको उपयोग करेगा, सब कुछ ऋषिकेश के लिए उस उपयोग करेगा। तो ये युक्त वैराग्य है, क्योंकि सब कुछ कृष्णा का है, तो कृष्णा की सेवा में हमें अपने आप को और हमारे परिवार में और हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हमें दिख रहा है इस दुनिया में, जो भी है सब भगवान का है, तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ हाउ अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज अ वैरागी। वो वैरागी है, लेकिन इस दुनिया में रह के, सब कुछ के बीच में रह के, इज इन बिटवीन एवरीथिंग। हम देखेंगे कि वो भी ऑफिस जा रहा है, वो भी काम कर रहा है, वो भी उठ रहा है, वो भी सो रहा है, ये सब जो बाकी लोग करते हैं ऐसे लगता है कि वो भी कर रहा है, लेकिन उसके करने का अंतर क्या है, वो सब कुछ कृष्ण के मतलब कृष्ण को अर्पित करने के लिए कर रहा है, उसका पूरा जीवन कृष्ण के कृष्ण पे केंद्रीकृत है। सो ए पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस knows how to use everything in the service of the Lord. उसको पता है कि सब कुछ कृष्ण के सेवा में उपयोग हो सकता है। वो धनराशि भी इकट्ठा करेगा, किसी से डोनेशन मांग के, उसको भी वो पाई भगवान की सेवा में ही लगाएगा, खाना पकाएगा भगवान की सेवा में लगाएगा, फिर उस प्रसाद को वो पाएगा। Therefore, he does not become a victim of material consciousness. तो भौतिक दृष्टिकोण से वो दूर हो जाता है। Whereas an impersonalist tries to avoid good eatables, लेकिन मायावादी क्या करते हैं, ये सब हम चीज उपयोग करेंगे तो कृष्ण से दूर हो जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, तो इससे दूर रहना ही बेहतर है, तो सब कुछ वो फल्गु वैराग्य करके त्याग देते हैं। तो अच्छा खाना नहीं खाएगा, अच्छे लोगों के साथ नहीं रहेगा, बिकॉज वो ये समझता है कि उनके साथ रहना भी एक आसक्ति का विषय है और मैं बंधा जाऊंगा, तो वो सब कुछ छोड़ के जाना चाहता है मायावादी। लेकिन एक भक्त सब कुछ अपने भगवान के लिए समर्पित करना चाहता है। A devotee knows that Krishna is the supreme enjoyer and that he eats all that is offered. भक्त को पता है कि जो भी वो भोग चढ़ाएगा भगवान उसको जरूर खाएगा और उसके बदले में उसको खाने के लिए प्रसाद मिलेगा। Offering good eatables to the Lord, the devotee takes the remnants called prasadam. तो भोगा हम चढ़ाते हैं फर्स्ट क्लास। In fact, devotee always tries to offer first class things to the Lord. जो भी ऑफर होगा बेहतरीन होना चाहिए। Although Krishna says पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयचति, तुम भक्ति से कुछ भी मुझे दोगे मैं उसको स्वीकार करूंगा, पत्ता मैं स्वीकार करूंगा, पानी मैं स्वीकार करूंगा, फ्रूट्स जो हर जगह मिलेगा मैं स्वीकार करूंगा, बड़े बड़े चीज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन भक्त का यही प्रयास होता है कि मैं फर्स्ट क्लास चीजें भगवान को दूं, ये उसका प्रयास है। तो और बाद में वो उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा और डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगा लोक कल्याण के लिए। एवरीथिंग बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड एंड देयर इज नो डेंजर ऑफ अ फॉल डाउन। तो इसलिए वो कभी पतित नहीं हो सकता। यहाँ देख रहे हैं प्रणश्यति, ये भौतिक विषय में जो बंध चुका है उसके लिए। एक भक्त का कभी
विनाश नहीं होता. Krishna is telling, Kaunteya pratijani name bhakta pranashyati. Krishna tells Arjuna, declare it boldly, Arjuna, that my devotee will never perish. So yes, this shloka is meant for materialists. But we must know that yes, anybody can easily slip into this mode if they are not careful. अब अगर हम मतलब जागरूक नहीं है तो थोड़े से चूक से हम गिर सकते हैं. थोड़ा सा ऑयल अगर फर्श पे है तो हम गिर सकते हैं. सिर्फ थोड़ा ही काफी है हमें गिराने के लिए. ठीक वैसे ही when we are careless and when we take our mind off the Lord, then very easily we will fall down. So impersonalist therefore cannot enjoy life due to his artificial enunciation. तो एक मायावादी इस भौतिक जगत में वो खुश नहीं रह सकता क्योंकि वो फल्गु वैराग्य के पीछे भाग रहा है. For this reason, a slight agitation of the mind pulls him down. तो इसलिए मायावादी को अगर थोड़ा सा भी झटका लगेगा जिंदगी में, वो फिर वापस भौतिक मतलब व्यवस्था में पहुंच जाएगा, फिर भौतिक चीजों में वो उलझ जाएगा. So it's the danger of being a mayavadi. But a Krishna devotee is not a mayavadi. He is directly connected with the Supreme Lord. Krishna भगवान से वो नेर संपर्क में है. Is in direct association of Supreme Lord through the via medium of spiritual master. गुरु के माध्यम से वो कृष्ण के साथ हमेशा संपर्क में रहता है और कृष्ण बोलता है न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी उनका विनाश नहीं हो सकता. योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं उनका योगक्षेम का भार लेता हूं अपने ऊपर. So this is the guarantee that Krishna gives. So in these two shlokas, 62 and 63, what did we learn? Let's summarize before we move on. We must watch what goes on in the mind. हमारे मन में क्या विचार आ रहा है, हमें बहुत ही क्या बोलते हैं अलर्ट रहना चाहिए. Because I told thoughts becomes words, words becomes actions, actions becomes habits, habits becomes character. जब हम कुछ सोचते हैं फिर ज्यादा सोचते हैं तो वो शब्द बन जाता है. शब्द से हम बोलते रहेंगे तो वो एक कार्य बन जाता है, एक्शन बन जाता है. कार्य हम करते रहेंगे तो वो एक अभ्यास हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा. और ऐसे अनेक हैबिट्स हमारी जिंदगी में जब आ जाएगा, दैट डिटरमाइंस अवर कैरेक्टर, वो हमारा चरित्र को निरूपित करेगा. सो व्हाट वी कंटेम्पलेट मेंटली वी कल्टिवेट इट मेंटली. हम जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं वही हमारे जिंदगी में होता रहेगा, बिकॉज वी कीप अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स. So that is called as the power of attraction. It is very true. We can attract negative things in our life. We can attract positive things in our life. We want to attract Krishna in our life. So we must always think of Krishna. Krishna के बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए. उसके कथा के बारे में, उसके लीला के बारे में, उसके मूर्ति के बारे में और उसके धामों के बारे में, उसके भक्तों के बारे में ये सोचते रहेंगे तो कृष्ण से हम हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे. And we will attract Krishna in our life. This is the secret of the power of attraction, which is very popular in today's world. All of us know in the computer language there is a principle called GIGO principle. GIGO. GIGO means garbage in, garbage out. जो अंदर जाएगा इनपुट बनके, उसके ऊपर निर्भर है क्या आउटपुट आएगा. अगर हम कूड़ा डालेंगे तो आउटपुट भी कूड़ा ही आएगा. अच्छे चीज डालेंगे, अच्छे चीज ही बाहर आएगा. ऑफ कोर्स Rahul Gandhi ji tells that he will put aloo from this side and he will remove sona from the other side. That is beyond my capacity to understand. But that is on the lighter side. All due credit to him if he can do it. But the principle is when we have good inputs in our mind, the output of our life is also good. When we have Krishna's inputs in our mind, the output of our life is also Krishnamaya. So careless contemplation will turn tempting thoughts into time bombs that explodes in our face. हम सोचते हैं थोड़ा इसमें उलझ जाएंगे, थोड़ा उसमें उलझ जाएंगे, क्या हो जाएगा, थोड़ा ही तो कर रहे हैं.
लेकिन थोड़ा 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 ये इकट्ठा होके एक टाइम बॉम्ब जैसा बन जाता है, और एक दिन वो हमारे मुंह पे वो फट जाएगा। देन वी विल नॉट नो फ्रॉम वेयर दिस हैपेंड। तो द पावर ऑफ हैबिट कैन बी बोथ टेरिफिक एंड टेरिबल। तो अभ्यास, अच्छे चीजों का भी अभ्यास हो सकता है, बुरे चीज का भी अभ्यास हो सकता है। अगर हम सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करेंगे, वो अच्छा चीज है, वो हमारी जिंदगी में काम आएगा। और हर सुबह हम लेट उठ रहे हैं, वो भी एक अभ्यास बन जाएगा, और उससे हमारा जिंदगी कहीं और चला जाएगा। इट विल गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। बोथ आर हैबिट्स। सो द हैबिट इज वेरी पावरफुल। हैबिट्स आर वेरी पावरफुल, बट if you want to have powerful habits, you must have habits that are connected with कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में आपका ध्यान हमेशा केंद्रीकृत होना चाहिए। A timely pull can save us from a deadly fall। इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए। जब भी हमारा मन विचलित होकर कहीं कृष्ण के से दूर जा रहा है, उसको वापस खींचना है। So if you do it timely, then we will be saved। ज्यादा दूर चला गया, if it goes very far, it's very difficult to get it back। There's a very popular proverb, a stitch in time saves nine। अगर हम सही वक्त पे जो कपड़े में छेद हो गया है उसको हम सी लेंगे, तो वो करने से बाद में 9 ऐसे मतलब धागे को सीने का काम से हम बच जाएंगे। तो सही वक्त में हमें सही काम करना चाहिए। So we must break the habits that can break us before they can break us। So जो भी हमारे जिंदगी में हम दुराभ्यास, जो दुराभ्यास का मतलब क्या है? व्हाट इज बैड हैबिट? एनीथिंग दैट इज टेकिंग मी अवे फ्रॉम कृष्णा। जो भी कार्य मुझे कृष्ण से दूर लेके जा रहा है, जो भी अभ्यास मुझे कृष्ण से दूर लेके जा रहा है, not able to get up early, not able to chant my 16 rounds of Hare Krishna mantra, not able to go to the temple, not able to read Prabhupada ji's books, not able to hear to his lectures, not able to get time to attend such sessions like this, not able to get time to associate with devotees, then we are really going in the wrong direction। तो हमें रुकना चाहिए, सोचना चाहिए हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, और we must be able to adjust it and maneuver it इन द राइट डायरेक्शन। तो हमें बहुत जागरूक होना चाहिए कि क्या हम अपने वक्त को कृष्ण भावनामृत में बिता रहे हैं, और अगर हम नहीं कर रहे तो हमें थोड़ा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, और फिर हमें कोर्स करेक्शन करना चाहिए। सो वी कम टू द पॉइंट वेयर इज कॉल्ड एज द स्टेप ladder। I cannot call it a step ladder, it is a step down ladder of fall down। What is that step down ladder of fall down or temptation? Pranashyati, pathit hone ka, what we have a step ladder of yoga which elevates us in Krishna consciousness। तो सीढ़ी को हम ऊपर चढ़ सकते हैं, सीढ़ी को ऊपर चढ़ सकते हैं योगा लैडर में। हम श्रद्धा से स्टार्ट करके प्रेम भक्ति तक जा सकते हैं कृष्ण भावनामृता में। लेकिन उस सीढ़ी को हम नहीं चढ़ रहे तो हम अवश्य ही दूसरा एक सीढ़ी है जो नीचे की तरफ जाता है, उस पे हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। एंड व्हाट आर द स्टेप्स? वी ऑलरेडी डिड। कंटेम्पलेशन, सोचना, विषयों के बारे में सोचना। सेकंड, सोचने से क्या होगा? संगा, अटैचमेंट, मतलब मैं उससे बंध गया। फिर कामः, बंधन से काम का उत्पत्ति हुआ। डिजायर, डिजायर से क्या हुआ? क्रोधा, एंगर। व्हेन इट इज नॉट फुलफिल्ड, or when it is not fulfilled the way I want, then anger is manifested in my life। क्रोध आ जाएगा। क्रोध आने से क्या होगा? सम्मोह, सही और गलत का परिभाषा हम भूल जाएंगे, और जब हम उसको भूल जाएंगे, बुद्धि, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब स्मृति भ्रंशाद, मतलब हम अपनी स्मृति को खो बैठेंगे। हमें सही और गलत का परिभाषा जब हम खो बैठेंगे, क्या हो जाएगा? बुद्धि नाशा। द नेक्स्ट स्टेप इज लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। और बुद्धि जब नाश हो जाएगा, क्या होगा? प्रणश्यति, फॉल डाउन। दिस इज हाउ अ पर्सन फॉल्स डाउन। जब कोई पतित होता है, उसको ये सोचना है कहां से शुरू हुआ? सोच से शुरू हुआ। इसलिए कल भी हमने बताया था कि सोच से हम
अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं या सोच से हम अपनी जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं। तो भक्ति योगा ensures that we don't get overwhelmed by material desires। तो भक्ति योगा करने से क्या होगा, तो without any external effort, we don't have to put lot of efforts to free ourselves from these material desires। भौतिक इंद्रिय तृप्तियों के विषय के मतलब से दूर जाने का ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण हमारी जिंदगी में जब आ जाएंगे तो माया का अंधकार अपने आप चला जाएगा। जितनी मात्रा में हम उनको अंदर बुलाएंगे उतनी मात्रा में माया भी बाहर चले जाएगी। इट गिव्स अ हायर टेस्ट बाय विच वन कैन रेजिस्ट लोअर टेस्ट। तो परम दृष्टवा कैसे हम पा पाएंगे, कृष्ण को हमारे जीवन में लेके आना है। एंड हाउ डू वी डू इट इन कलियुग। कलियुग में सरल उपाय है कृष्ण को आपके जिंदगी में लेके आने का। द बेस्ट वे, इजिएस्ट वे टू ब्रिंग कृष्णा इन योर लाइफ by chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। जी हाँ, इतना आसान है। तो we can start with one round of Hare Krishna मंत्र। 108 एक माला में 108 मोतिया होता है, उससे 108 बार हम जब हम हरे कृष्ण मंत्र जपा करेंगे हम कृष्ण के समीप चले गए। तो ऐसे धीरे धीरे हम इसको बढ़ाना है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हर रोज हमें 16 माला कम से कम करना चाहिए। मिनिमम 16 राउंड्स वी हैव टू डू। व्हाट शुड आई डू इफ आई एम अ बिगिनर नाउ? यस, यू मे नॉट बी एबल टू डू 16 राउंड्स। आप अभी 16 माला डायरेक्टली शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर बुद्धि से काम लेंगे, अगर आपको पता है कि अच्छा यही करना है, तो पहले काम हम सुबह में यही करेंगे। मॉर्निंग विल डू दिस वर्क द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। इंटेलिजेंट मैन विल इजीली डू इट। लेकिन अगर हमें कष्ट हो रहा है तो पहले 1 माला से प्रारंभ करेंगे, फिर 15 दिन के बाद 2 माला कर लेंगे, उसको ज्यादा बढ़ाएंगे, फिर 1 महीने के बाद 4 कर लिया, 2 महीने के बाद 8 कर लिया, 6 महीने के बाद 12, फिर 1 साल के बाद हम 16 माला तक पहुंच गए। ये स्टेप वाइज जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता है, हमें मतलब कन्विक्शन है कि if this is what finally we have to do, why should I wait? Prabhupada also says in many of his lectures, when you know this is what you have to do, you have to come to Krishna consciousness, why should you wait? क्यों उसको मतलब विलंबित करना है? तो Srila Prabhupada says, one who is not Krishna conscious, however powerful he is in sense control। इंद्रिय दमन में वो बहुत पावरफुल शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में नहीं है, मतलब कृष्ण का भक्त नहीं है, तो क्या होगा, कभी ना कभी वो पतित होगा जरूर। बिकॉज कृष्ण उसके समीप नहीं है, कृष्ण उसको मार्गदर्शन लेने के लिए उसके पास नहीं है। सो इफ यू लेट मंडेन डिजायर्स ड्राइव अस, अगर हम भौतिक सोचों से अपनी जिंदगी को चलाएंगे तो क्या होगा हमारी जिंदगी में, वी आर श्योरली गोइंग टू लूज अवर वे। तो हम अपने रास्ता में खो जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू रीच द अल्टीमेट गोल। वी मस्ट निप द थॉट्स इन द बड स्टेज इटसेल्फ। जब अंकुर वीड्स बाहर आ जाएगा उसी समय उसको काट देना चाहिए, वरना वो बड़ा होके असली फल को खा जाएगा। मतलब असली जो धान्य है, हमने गेहूं का बीज बिताया लेकिन अभी वीड्स आ गया। If I don't take care of it at that time when it comes out, immediately if I don't take care of it, or even before that, then surely I'm going to lose my crop, or it will be too late. So this is what is being learned in shloka number 62 and 63. I tried to do it a bit elaborately because it's a very important shloka for us. We'll move on to shloka number 64. Another important shloka. रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। So 2 important words here, videya atma, prasadam adhigacchati. So we'll see what it is. So this shloka talks about who can obtain the complete mercy of Krishna. Prasadam adhigacchati, भगवान कृष्ण का प्रसाद, भगवान कृष्ण का जो दया है, हेतु रहित दया है, causeless mercy, who can get? One who can control his senses by practicing the regulated principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord and thus become free from all attachment and aversion.
raga dvesha vimuktaisthu, free from attachment and aversion, vishayan indriyais charan, आत्मवश्य, कंट्रोलिंग द सेंसेस, आत्म को वश में लेके मतलब अपने इंद्रिय दमन करके, मन को शमन करके, एंड बाय प्रैक्टिसिंग द रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, विधेय आत्मा, वन हु प्रैक्टिसेस रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, एक चौकट में, एक बाउंड्री में हम अपना सेंसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के बाउंड्री में, इट इज कॉल्ड विधेय आत्मा. What happens to such a person? Prasadam adhigacchati, the mercy of the Lord. Prabhupada translates prasadam here as mercy of the Lord adhigacchati, attains. तो भगवान कृष्ण की दया अगर हमें चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? So राग द्वेष विमुक्ता, we must become, राग और द्वेष से हमें विमुक्त होना है. विषयान इंद्रियैः चरन्, और हमें हमारे इंद्रियों को इधर उधर भटकने के लिए नहीं छोड़ना है. आत्मवश्य, इससे हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को वश में रख सकते हैं. विधेय आत्मा, सो विधेय आत्मा इज ट्रांसलेटेड बाय प्रभुपाद एज वन हु फॉलोज रेगुलेटेड फ्रीडम, दैट मींस वन हु फॉलोज कृष्णा कॉन्शियसनेस. प्रसादम अधिगच्छति, ही विल ऑब्टेन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, वो भगवान की हेतु रहित कृपा के पात्र हो जाता है. One may externally control the senses by some artificial process, but unless senses are engaged in transcendental service of Lord, there is every chance of fall. So बार बार जैसे कि मैंने बताया, प्रभुपाद का हर पर्पट भक्ति प्रदान पर्पट्स है. वो ज्ञान योग के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ध्यान योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा. He's talking of all these things in the shlokas, but in the purport is always bringing us back to bhakti, because that is the final frontier. We have to reach there. So इसलिए हमें लगता है कि repetitive हो गया, लेकिन repetition is good. When something is good for us, repeating it is good for us because it gets imprinted in the mind. तो जब कुछ भी अच्छा है तो उसको बार बार दोहराना अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे मन में बैठ जाएगा. Unless the senses are engaged in the transcendental service of Lord, there is every chance of fall down. अगर हम प्रणश्यति नहीं चाहते तो हमको कृष्ण भावनामृत में सदा रहना है. The person in full Krishna consciousness may apparently be on sensual plane because of his being Krishna conscious. He has no attachment to sensual activities. ऐसे लगता है कि ये भी हमारे जैसे ही काम कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में जो है, लेकिन उनके काम और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहा है वो अजगजांतर है. वो अपने लिए कर रहा है, लेकिन कृष्ण भावनामृत जो है वो कृष्ण की तृप्ति के लिए कर रहा है. He is doing for the pleasure of Krishna. So we'll be concluding it today's session very soon. If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinarily undesirable, and if Krishna does not want, he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. अगर कृष्ण नहीं चाहते, वो जो उसको एक्चुअली रेगुलरली वो जो कर रहा था उसको वो छोड़ देगा. और अगर वो कृष्ण चाहता है कि वो कुछ करे, कभी उसने नहीं किया, कृष्ण के लिए वो करने के लिए तैयार हो जाता है. ये भक्त का लक्षण है. He acts only under the direction of Krishna. कृष्ण के मार्गदर्शन में ही वो काम करेगा. कृष्ण के मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? भगवद गीता से, गुरु के माध्यम से, और हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से. हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से भी हमें अंदर से कृष्ण डायरेक्शंस देंगे. This consciousness is the causeless mercy of the Lord. और ये स्थिति पे आने के लिए भी भगवान की दया चाहिए. भगवान की दया के पात्र होने के लिए भी भगवान की दया चाहिए. So we will stop here for today. If there are any questions, please post it on the WhatsApp to me directly. I will reply to you. Thank you very much for joining me today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. There are no questions in the chat as far as I'm seeing.